નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 5 of chapter 4 Heat, standard 7th science. Before starting this chapter, just you keep your textbook with you, and that to be you should be on the page number 40, as well as keep a sharpened pencil with you. Okay, and in the last part we discussed that how to measure temperature of hot water with the help of laboratory thermometer, and why laboratory thermometer cannot be used to measure the temperature of our body, as well as this second thing we learnt, it was why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth. Do you know that? Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? What it is there in that clinical thermometer? If you don't know, then find out, read into your textbook or watch the video part number 4. In this part, let's discuss transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. जब हम frying pan को flame के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? It becomes hot naturally. It is because the heat passes from the flame to the utensil. जो हम गैस स्टोव चालू करते हैं उसमें से हीट आती है. It passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. Okay, so you can understand that in both cases the heat flows from hotter object to colder object. Now in both case, that is what, पहले में जब हमने फ्राइंग पैन हीट पे रखा तो हीट से जो फ्लेम से हीट कहाँ पर पास हुई? फ्राइंग पैन के. क्यों? क्योंकि फ्राइंग पैन कूल था तो हीट फ्लेम से पास हुई कूल की ओर. ठीक है. फिर दूसरे में क्या हुआ? व्हेन वी रिमूव द हॉट फ्राइंग पैन फ्रॉम दैट फ्लेम, देन व्हाट हैपेंड? The heat is transferred from pan to surroundings. Okay, तो दो केस हुए, दोनों में क्या हुआ? So you can understand that in both cases the heat flows from hotter object to a colder object. Okay, so in fact in all cases heat flows from a hotter object to a colder object. यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी है, इन ऑल केस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी है और ये इसको याद कर लेना है. ठीक है. तो देन हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट. तो ये अब जानने की ट्राई करते हैं. For that there is activity 4.6. So let's go for activity 4.6. Take a rod or flat strip of a metal, say of aluminium or iron. ठीक है, आपको फ्लैट स्ट्रिप या रोड लेना है. कौन सी मेटल का? एल्यूमिनियम और आयरन का. फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज ऑन द रोड. अब ये जो रोड है उसके ऊपर थोड़े थोड़े जो स्मॉल वैक्स पीसीज है उसको चिपकाने हैं, फिक्स करने हैं. दिस पीसीज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज. और वो कहाँ पे होने चाहिए? नियरली इक्वल डिस्टेंस पे. क्लैम्प द रोड टू ए स्टैंड. इफ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स. आपकी फिगर में देखिए, दिखाई देता होगा. नाउ हिट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व. एक एंड को क्लैंप या तो
मतलब क्लैंप में फिक्स कर देना है, एंड दूसरे एंड से हमें क्या करना है, उसको हीट करना है, ठीक है, हीट देनी है, वी कैन से। What happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which piece fall the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other hand? अब क्या हुआ देखिए, एक्चुअली यहाँ से हमने हीट देना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, हीट वो जो है वो पास होने लगी किस ओर, कोल्डर एंड की ओर, ठीक है। तो पहले जो पीस आया वो पिघल गया, है ना, एंड दैट इज वाई वो नीचे गिर गया। फिर दूसरा कौन सा पीस गिरेगा, ये वाला, ठीक है। तो वी कम टू नो दैट कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, or we can say to the heat is passes from this end which is near the flame to the other end in this way. Okay, let's go further. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. तो ये आपको अंडरलाइन करना है, क्या है, the process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. So what is conduction? The answer should be these underlined lines. Okay, in solids generally the heat is transferred by the process of conduction. ये भी आपको याद रखना है। इन सॉलिड्स में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, इन योर टेक्स्ट बुक, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सभी सब्सटेंस होते हैं उसमें जो हीट है वो इजीली कंडक्ट होती है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन ऑफ कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। ये जो मेटालिक पैन होता है उसका जो हैंडल होता है कौन सा होता है, प्लास्टिक या तो वुडन का। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? या वो प्लास्टिक या वुडन का होता है तो हम हर्ट नहीं होते हैं और इजीली उसको उठा सकते हैं। लेट दैट पेन इज हॉट दो देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 4.6। सॉरी, एक्टिविटी 4.7। उसमें क्या है, हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। आपको पानी को गर्म करना है, किस में, स्मॉल पैन या तो बीकर में। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है। कौन से है, स्टील स्पून, वो आप घर में मिल जाएगा, प्लास्टिक स्केल भी मिल जाएगी, पेंसिल भी मिल जाएगी और डिवाइडर भी मिल जाएगी। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर, वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। पहले चलिए ये फिगर 4.8 देख लेते हैं। उसमें क्या है, देखिए, इन दिस बीकर देर इज हॉट वाटर। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या डाला है, प्लास्टिक स्केल है, वुडन पेंसिल है, ये स्टील स्पून है और अंदर जो है वो डिवाइडर है। कैन यू सी दैट? ये जो पानी है वो हॉट वाटर है। अब इसमें ये चारों चीज़ें थोड़ी देर के लिए रखनी है, फॉर ए फ्यू मिनट्स। फिर क्या करना है, उसका जो अदर हैंड है, मतलब के ये वाला हैंड यहाँ से या तो यहाँ से या तो यहाँ से अदर हैंड है, वहाँ से उसको टच करना है और हमें देखना है कि भाई
वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड। ओके, और जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे लिखने हैं इन टेबल 4.3। सी इन टेबल 4.3 आर्टिकल कौन से है, स्टील स्पून है, ये यहाँ पे है। उसमें क्या हुआ, मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ। स्टील स्पून किससे बना था, मेटल से। मटेरियल कौन सा था, मेटल। डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो। या अगर हम गर्म पानी में स्टील स्पून को रखेंगे, फिर थोड़ी मिनट के बाद उसका अदर हैंड को टच करेंगे तो वो हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस लिखना है। फिर अगर हम दूसरा ले तो चलिए पेंसिल के लिए सोचते हैं। सी देयर इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल। अगर उसको थोड़ी देर के बाद टच करते हैं तो क्या वो हॉट हो गई होगी, नो, इट विल नॉट गेट हॉट। पेंसिल हॉट नहीं होगी, मतलब कि उसका अदर हैंड है वो हॉट नहीं होगा। फिर ये जो प्लास्टिक स्केल है उसमें क्या होगा, उसका जो अदर हैंड है वो भी हॉट नहीं हुआ होगा, मतलब कि नो। फिर ये जो डिवाइडर है यहाँ पे, उसका क्या हुआ होगा, उसका अदर हैंड हॉट हो गया होगा। मतलब कि ये जो स्टील स्पून है और ये जो डिवाइडर है, दोनों कौन से मटेरियल्स के थे, मेटल के थे। ठीक है, इसलिए दोनों का जो अदर एंड है वो हॉट हो गया होगा। लेकिन पेंसिल जो है वो किससे बनी है, वुड से, और उसका अदर एंड हॉट नहीं है। दूसरी बात, ये जो प्लास्टिक स्केल है उसका मटेरियल प्लास्टिक है, उसका भी अदर एंड हॉट नहीं हुआ होगा। समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपको याद रखना है, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है, द मटेरियल्स, सॉरी 1 मिनट, the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। याद रखना है। फिर एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, दोज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, अब आगे देखते हैं। द मटेरियल्स, ये दूसरी अंडरलाइन फिर से चालू करनी है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक, वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो देखियो, पुअर कंडक्टर किसे बोलते हैं, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, फिर दूसरी बात भी यहाँ पे याद रखनी है, सच एज प्लास्टिक एंड वुड पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। प्लास्टिक एंड वुड को क्या मतलब बोला जाता है, वो उनको इंसुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, सो वी कम टू नो विच आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स। ठीक है, उसको याद रखना है। दी water and air are poor conductors of heat। The water and air are poor conductors of heat। देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट, याद रखना। एंड दैट इज वाई द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। और ये इसको हम फाइंड आउट करेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन में। ओके, टिल दैट वॉच दिस वीडियो 2 to 3 times। Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.